السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں ماہ رجب کا نام مطہرون رکھنے کی کیا وجہ ہے اور کتنی روزے کرتے ہیں اور کتنے روزے کرنے میں کیا ثواب ملتا ہے، وہی واقعہ میں بیان کروں گی، تو ویڈیو پر بنے رہیں ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اور ایک لائک کریں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب کا نام مطہرون رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے روزہ دار کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے روایتوں کے ایک روایت وہ ہے جو شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک سکتی نے حضرت حسن ابن احمد بن عبداللہ مکری کے حوالے سے، اور انہوں نے ہارون بن غزہ اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کا ایک روزہ رکھے گا اس کو 1000 برس کے روزہ کا ثواب ہوگا، اور جو 2 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2000 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ جو 3 روزہ رکھے گا اس کو 3000 کے روزہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے 7 روزہ رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو 8 روزہ رکھے گا اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو، اور جو بندہ 15 روزہ رکھے گا اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، اور آسمان سے ندا آئے گی کہ تجھے بخش دیا گیا، اب آئندہ کے لیے تو اجسر نو عمل کر۔ اور جو بندہ اس سے زیادہ روزہ رکھے گا اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا۔ شیخ امام ہبۃ اللہ بن امام مبارک نے اپنے اسناد کے ساتھ بروایت یونس بن حسن رضی اللہ عنہ روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 30 سال کے روزوں کے برابر ثواب دے گا۔ امام ہبۃ اللہ بن مبارک حسن بن احمد بن عبداللہ مکری سے اسناد کے ساتھ بروایت علا بن کثیر مکحول بیان کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت ابو داؤد سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں سوال کرتے سنا۔ حضرت ابو درداء نے جواب میں فرمایا کہ تم نے ایسے مہینے کے بارے میں پوچھا ہے جس کی عہد جاہلیت میں بھی لوگ عظمت کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی عظمت و مرمت میں مزید اضافہ کر دیا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو سرد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دوزخ کا ایک دروازہ اس کے طرف سے بند کر دے گا، اگر زمین کے برابر اس کو سونا مل جائے تب بھی وہ اس اجر کا بدل نہ ہو سکے گا، نہ دنیا کی کسی چیز سے اس کا اجر پورا ہو سکے گا، سوائے قیامت کے دن کے ماہ رجب کے اس روزہ دار کی جب شام ہوتی ہے تو دنیا ماہ
रजब के उस रोज़ा दार की जब शाम होती है तो उस वक्त उसकी 10 दुआएं कबूल होती है। अगर दुनिया की वह कोई चीज़ मांगता है तो वही उसको अता कर दी जाती है, वरना उसके लिए खैर का इतना ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है जो उन दुआओं के ज़ख़ीरा से बेहतर होता है जो अव्वलन और असफ़ाए सादिकीन कहते हैं। जिसने रजब के दो रोज़ा रखे उसको मज़कूरा सवाब के अलावा ऐसे 10 सिद्दीक़ों का सवाब मिलेगा जो अपने तवील तर उम्रों के साथ सादिक रहे और सादिकीन की शफाअत के बराबर उसकी शफाअत और सिफारिश कबूल की जाए। वह खुद सद्दीकीन के साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। जिसने 3 दिन के रोज़ा रखे तो उसको मज़कूर वाला सवाब का दुगुना सवाब मिलेगा। उसके इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, बेशक मेरे बंदे का हक वाजिब हो चुका है और मेरे मोहब्बत और दोस्ती उसके लिए वाजिब हो चुका है। ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुझको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। और जब बंदा 4 रोज़ा रखेगा उसको ये तमाम सवाब मिलेगा और मजीद बरआन उन आबिदों और बसीरत वालों का सवाब भी मिलेगा जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं। उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और कामयाब होने वाले अव्वल तरीन गिरोह में शामिल होगा। और जो शख्स 5 रोज़े रखेगा उसको वह सब कुछ मिलेगा जो बयान हो चुका। और मजीद बरआ ये कि जब उसको क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14 के चाँद की तरह तबाह और दरखुशा होगा। उसकी नेकियां इतनी लिखी जाएगी कि जितने आलिज के रेगिस्तान में रेत की जर्रें हैं। वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा और उससे कहा जाएगा कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए जो आरजू तू करना चाहता है कर लो। जो आरजू करना चाहता है कर वह पूरी होगी। जो 6 रोज़ा रखेगा उसको भी यही कुछ मिलेगा और उसके अलावा ऐसा नूर भी अता होगा जिससे क़यामत में जमा होने वाले लोग रोशनी हासिल करेंगे और उसको आमन व दामन वाले लोगों के साथ उठाया जाएगा यहाँ तक कि वह बगैर हिसाब के पुल सिरात से गुजर जाएगा। नेज़ वालिदैन की नाफरमानी और कता रहमी के गुनाहों से भी उसको माफ़ी दे दी जाएगी। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के हुजूर में उसकी पेशी होगी तो रब्बुल इज़्ज़त बजाते खुद उसकी तरफ तवज्जो फरमाएगा। जो 7 रोज़ा रखेगा उसको मंदजे झेल वाला आज़र भी अता होगा और मजीद बरआ और अज़र भी मिलेगा। दोज़ख के 7 दरवाज़ा उसके ऊपर बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला जहन्नम की आग को उस पर हराम कर देगा। अल्लाह अकबर। और जन्नत को उसके लिए वाजिब फरमा देगा, वह जहाँ चाहे क़याम करे। और जो 8 रोज़ा रखेगा उसके लिए मज़कूरा बला अज़र भी होगा और मजीद बराए अज़र भी मिलेगा। बहिश्त के 8 दरवाजे उस पर खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो। जो 9 रोज़े रखेगा उसको उस अजर के अलावा और अजर भी मिलेगा। उसका अमाल नामा आलीन में उठाया जाएगा।
क़यामत के दिन अनबिया के साथ होगा। कब्र से निकलते वक्त इसका चेहरा ऐसा तांबा और नूर पास होगा कि तमाम अहले जन्नत के चेहरे जगमगा जगमगा उठेंगे। यहाँ तक कि लोग कहेंगे कि क्या ये कोई बुजुर्ग नबी हैं जो दर्जात उस बंदे को अता होंगे। उनमें से सबसे कम दर्जा ये होगा कि वह बगैर हिसाब दिए जन्नत में दाखिल होने वालों में से होगा। और जो 10 रोज़े रखेगा उसका तो क्या ही कहना, वह हर तरफ तारीफ व तौसीफ का मुस्तहक होगा। उसको 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। वह उन लोगों में से होगा जिनके बदियों को नेकियों से बदल दिया जाएगा। वह अल्लाह के मुक़र्रबीन और अल्लाह के लिए अदल व इंसाफ पर कायम रहने वालों में से होगा। और उस शख्स की मांद होगा जिसने 1000 साल तक रोज़ा दार रह कर खलूस और जज्बे के साथ इबादत की हो। अल्लाहु अकबर। जिसने 20 दिन के रोज़ा रखे उसको 20 गुना सवाब मिलेगा। वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुब्बू के रूबरू होगा और वह किबले रबिया और मोज़र के लोगों के बराबर खताकारों और गुनाहगारों की सफ़ा करेगा। अल्लाहु अकबर। जो शख्स माह रजब के 30 रोज़ा रखेगा उसको उनके सवाब के अलावा 30 गुना और मज़ीद सवाब और अजर मिलेगा। एक मुनादी आसमान से निदा करेगा कि ऐ अल्लाह के वली, करामत अज़मा की आपको बशारत हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया गया कि हुजूर करामत अज़मा क्या है। फरमाया कि अल्लाह ताला की वजह ज़मील की तरफ नज़र करना, दीदारे इलाही से मशरफ होना और अनबियाए सादिकीन और शहीदाए की रफ़ाकत जो बहुत ही अच्छी रफ़ीक हैं, गरामत अज़मा हैं। ऐ माह रजब के रोज़ा रखने वाले कुल को जब हिसाबात उठे जाएंगे तो अपने रब के अजर अजीम तक पहुँचेगा और फिर तेरे लिए मसरत ही मसरत होगी। मरते दम उस रोज़ेदार पर जब मौत का फरिश्ता उतरेगा तो निजा के वक्त अल्लाह ताला हौज फिरदौस का शरबत उसको पिलाएगा। इस तरह मौत उस पर इस कदर आसान हो जाती है कि उसकी तकलीफ़ उसको कतई महसूस नहीं होती। कब्र में वह सिराब रहता है और क़ियाम महशर में भी सिराब रहेगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौज कौसर पर्दा पहुँच जाएगा। जब वह कब्र से उठेगा तो 70,000 फरिश्ते मोती और याकूत की ऊँटनियाँ, किस्म किस्म के जेवर और खिलअतें साथ लेकर आएंगे और उससे कहेंगे कि ऐ अल्लाह के दोस्त, अपने रब के पास जल्द चलो जिसके खुशनुदी के लिए तुमने अपने पास अपने आप को दिन भर प्यासा रखा और जिसकी रज़ा तलबी के लिए तुमने अपने जिस्म को कमज़ोर और मजमहल किया। वह क़यामत के दिन फ़ाइज़ीन के साथ जन्नत अदन में सबसे पहले दाखिल होने वालों में होगा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह उनसे और वह अल्लाह से राज़ी होंगे और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी कामयाबी और फौजु फलाह है। अगर कोई शख्स रोज़ाना के रोज़ों के साथ अपने रोज़ी के हम वज़न खैरात भी करेगा तो उसका क्या ठिकाना।
हुजूर ने ये कलमात 3 मरतबा अदा फरमाई, जो सवाब उसको दिया जाएगा। अगर तमाम मखलूक उसका अंदाज़ा करना चाहे तो उसके 10वीं हिस्सा का भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह।